اس پر سال 2 لاکھ پہ گزر جاتا ہے تو اب اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ غربا، یتیم، مسکین، بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے کہ 1,81,995 مطلب 2 لاکھ کے قریب اگر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا اور وہ اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ رب کائنات جس مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی ہوگی وہ مال قیامت والے دن وبال جان بن جائے گا، جہنم میں اس کو تپا کر جو ہے وہ پشتوں چہروں پر جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ کا مال دینے سے کبھی بھی انسان کے مال میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی، بلکہ اس کا مال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو جب برکت آتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کا مال جو ہے وہ تھوڑا بھی اگرچہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی برکتیں دے دیتا ہے، اور پھر اس سے انسان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے سے۔ بعض اوقات تنگ نظری سے یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید اگر میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے تو میں دوں گا تو میرا مال جو ہے وہ لاکھ میں سے جو ہے وہ 2500 کم ہو جائے گا۔ یہ باتیں جو ہے بندہ سوچنے پر جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ بڑے فائدے دیتا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ مال کو پاک کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ کا عمل جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ غربا، یتیم، مسکین، بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، اگر ویسے نہیں ان کی خدمت کر سکتے تو چلو کم از کم زکوٰۃ تو فرض ہے دینی ہے، وہی خدمت کر دو، فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اور پھر فرمایا اس سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے، مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور پھر فرمایا ایک خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا رمضان میں دیتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے ایک دانے کی مثل ہے کہ جو آپ نے زمین پر بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور پھر ہر بالی میں جو ہے وہ 100 دانہ تھا، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 روپے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اتنے اس کو مال بھی واپس لٹا دیتا ہے۔ اور یہ صدقات و خیرات، زکوٰۃ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اضافی رقم کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹا دے گا۔ اور پھر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب جو سونے کا ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس کی رقم ہو یا اتنی چیزیں موجود ہوں یا اتنا کوئی پلاٹ کی رقم موجود ہو، اس پر سال پورا گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسری صورت ہے چاندی اگر اس کے پاس 52 تولے یعنی 52 تولے اگر اس کے پاس چاندی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی نہیں لیکن چاندی کے رقم اس کے پاس موجود ہے یا اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جو چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر آج اگر چاندی کی قیمت جو ہے وہ 3466 روپے ہے فی تولہ، تو اس کو اگر ہم 52 کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے تو یہ بنے گا 1,81,995
1,81,995, मतलब 2 लाख के करीब अगर किसी बंदे के पास माल है या चांदी की रकम है या उसके घर में जो है वो ऐसी जेवरात मौजूद हैं या उसके पास कोई ऐसा जो है वो ज़ख़ीरा मौजूद है, तो अब उस पर साल 2 लाख पे गुज़र जाता है तो अब उस बंदे पर ज़कात वाजिब होगी, ज़रूरी होगी। और ज़कात जो है वो कितनी है आपको पता है, 2.5% है। और इसका बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप पर जितनी भी ज़कात वाजिब हो, मिसाल के तौर पर आप पर 7.5 लाख रुपया जो है वो आपके पास मौजूद है, अब उससे अपने ज़कात निकालनी है। जितने भी पैसे मौजूद हैं उनको आप कैलकुलेटर करने के लिए मोबाइल निकालें और आप जो है वो वहाँ पे लिखें जी 7.5 लाख, लिख लिया। आप नीचे जो है तकसीम 40 पे कर दें, जितनी ज़कात होगी आपका जवाब आ जाएगा। ये आसान तरीका है, किसी से पूछना या खपने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी माल मौजूद है, यानी जितने पैसे आपके बनते हैं ज़कात के, जितने टोटल मौजूद है उसको टोटल लगा लें और उसको जो है वो 40 पर तकसीम कर दें। ये आसान बिल्कुल सादा सा जो है वो इसका आपको जवाब मिल जाएगा भी आपकी इतनी ज़कात बनती है। लाख पर जो है वो 2.5 के हिसाब से जो है वो 25 हो जाएगी, ऐसे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये ज़कात जो है वो किस पर जो है वो वाजिब है, एक तो है निसाब का मालिक हो और दूसरा है कि वो बंदा बालिग हो, उसके बाद जो है वो आकिल हो, यानी बेवकूफ़ पर ज़कात नहीं है। और फिर फरमाया कि माले मशरूत, यानी जो उसके पास माल मौजूद है, फिर फरमाया माले निसाब, माल जो है वो निसाब को पहुंच जाए, यानी उसका निसाब जो है वो मुकम्मल हो जाए। और फिर फरमाया कि मुकम्मल कब्ज़ा भी हो, जब तक कब्ज़ा नहीं होगा उस वक्त तक आप पर ज़कात जो है वो वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने कोई अभी प्लाट ख़रीदा है, आपका उस पर कब्ज़ा नहीं हुआ, आज प्लाट ख़रीदा है, कब्ज़ा होता है आपका 2 साल बाद। अब आपकी ज़कात कैसे बनेगी इस पर कि अब की ज़कात जो है वो साल गुज़रने पर आप पर लाजिम हो गई है, लेकिन आपने देनी कब है कि जब प्लाट पर मुकम्मल आपका कब्ज़ा हो जाएगा, अब उसकी 2 सालों की ज़कात जो है वो आप अदा करेंगे अगर वो प्लाट जो है वो फ़रोख्त करने की नीयत से आपने लिया है। और फिर अगर आपने कर्ज़ किसी को दिया हुआ है, एक है आपने कर्ज़ किसी का देना है, तो वो कर्ज़ वाली रकम निकाल कर फिर आप देखेंगे कि साहब निसाब है कि नहीं है। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है अपने पैसे, तो अब आप पर ज़कात वाजिब है। वो कर्ज़ उसके पास है, जब वो कर्ज़ वापस करेगा उस वक़्त जितने साल उसके पास वो कर्ज़ रहा है, 5 लाख 3 लाख, अब उसकी ज़कात आपने देनी होगी। और इसका तरीका क्या होगा फिर ज़कात देने का, कि जो किसी को आपने कर्ज़ दिया है उसका तरीका ये होगा, मिसाल के तौर पे आपका 5 लाख रुपया आपने किसी को दिया कर्ज़, अब उस पर जो है वो 2 साल की ज़कात बन गई, ठीक है। अब 2 साल की ज़कात बनी है, हर साल को लहदा काउंट करेंगे। पहले साल की ज़कात जो है वो 5 लाख में से जो है वो निकाल लेंगे। जब 5 लाख में से वो ज़कात जो है वो 1 साल की निकल जाएगी, अब जो बाकी रकम बचेगी फिर उसको जो है वो अगले साल से जो है फिर उसकी जो है वो रकम जितनी भी होगी उससे फिर जो है वो ज़कात काट ली जाएगी। तो जो आपके पास ज़ेवरात हैं घर के अंदर मौजूद हैं, बीवी के ज़ेवरात हैं, अब बीवी पर उसकी ज़कात वाजिब है और बीवी जो है वो ज़कात उसकी अदा करेगी। हाँ, बाज़ कहते हैं यार जो हमारे पास जो है वो सोना तो मौजूद है, पैसे तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ज़कात के लिए रकम मौजूद नहीं है, तो ज़कात ज़रूरी होगी, अगरचे आप उधार लेकर ही क्यों ना ज़कात दें। अगर साल उन पर गुज़र गया है, हाँ बीवी की ज़कात शोहर दे सकता है, यानी उस पर लाजिम नहीं है शोहर पे उसकी ज़कात देना, लेकिन अगर वो चाहे बीवी से या माँ बाप की, माँ के पास ज़ेवरात मौजूद हैं, बेटा कहता है माँ जी मैं आपकी ज़कात दे दूँ, तो माँ कहे दे दो बेटा, तो माँ की ज़कात हो जाएगी। बीवी की ज़कात जो है वो शोहर दे सकता है। ऐसे ही यानी ये बहुत से ऐसे ज़कात के मसाइल हैं। हम समझते हैं कि शायद सोना इतना होगा तो फिर ही ज़कात होगी, चांदी इतनी होगी तो फिर ही ज़कात होगी, नहीं। अगर साहिब निसाब हैं, उतना माल मौजूद है, उतना जो है वो प्लाट आपके पास मौजूद है, तो उस पर जो है कौन सी चीज़ों पे ज़कात नहीं होती, जो आपकी जो है वो घर की ज़रूरियात वाली चीज़ें हैं, बिस्तर हैं, कंबल हैं, आपकी सेफ अलमारी है उसमें कपड़े पड़े हुए हैं, बर्तन हैं, यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं आपकी, उन पर ज़कात नहीं होगी, अगरचे वो कीमती चीज़ें हों। मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी है,
हाँ, रहायश वाली जगह पे नहीं होगी ना। जो आपने ज़मीन जो है वो ली है, कोई मकान लिया है आगे फ़रोख्त करने की नीयत से, उस पर, या फिर किराए पर कोई चीज़, दुकान दी है किराए पर, मकान किराए पर दिया है, उसके किराए पर, यानी जो आप उसका किराया जमा कर रहे हैं उस पर साल गुजर जाता है तो उससे ज़कात ज़रूरी होगी, वो ज़कात देनी होगी। तो घर के अंदर जितने भी आपके सामान ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन पर जो है वो ज़कात नहीं होगी। गाड़ी ली और गाड़ी आपने इस लिए नीयत से ली कि मैं किराए पर दूंगा इसको और इससे जो है फ़ायदा हासिल करूंगा, अब उस पर ज़कात होगी। अगर अपनी ज़रूरत के तहत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, तो चाहे वो कितने ही लाख की हो उस पर ज़कात नहीं होगी। और ये भाई बात जो है उस दिन बात हो रही थी कि बाज़ बंदे जो हैं वो बड़े सियाने होते हैं और बेटे अगर 3 है ना तो वो 4 प्लाट ख़रीद लेते हैं और नीयत करते हैं यार ये मेरे फ़लाँ बच्चे का, फ़लाँ बच्चे का, फ़लाँ बच्चे का, ये 2 इसके हैं। तो ज़कात से बचने के लिए, हालांकि अगर बंदा इस वक्त में अगर कोई 3 प्लाट ख़रीदता है 2-2 मरले के भी, तो वो करोड़ तक तो पहुंच जाएंगे। तो जो करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है तो वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकता। ये सोचने वाली बात है ना कि यार अगर वो कहता नहीं मैं ज़कात से बच जाऊँ, ज़कात ना मुझे देनी पड़े, चलो ज़कात से बच गया, ठीक हो गया। अभी उसने नीयत की कि मैं रहाइश के लिए ख़रीद रहा हूँ और ज़कात से बच गया, लेकिन जितना आपके पास वो रकम मौजूद है अब उस रकम का हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर मेरे पास लाख है मैं लाख का हिसाब दूंगा, जिसके पास करोड़ है उसको करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। पिछली दफ़ा ना आप सारे फंसे हुए थे, माल कहाँ से आया, कहाँ से कमाया, किस जगह पे लगाया, बड़े बड़े जो है वो उन पे केस चले हुए थे। तो ये तो एक दुनिया की मिसाल थी ना, कब्र में हशर में जो है इससे बड़ा एक एक ज़र्रे का हिसाब होना है।